الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. آسان قرآنی عربی گرامر کا آج ہمارا 31 سبق ہے، 31 لیکچر ہے، جس میں ہم جملۃ الفعلیہ کو کنٹینیو کریں گے. آج ہم جملہ فعلیہ کا 12واں پارٹ پڑھیں گے، 12th پارٹ پڑھیں گے، 12واں باب پڑھیں گے، جس میں ہم جانیں گے فعل اجوف کیا ہوتا ہے. کیونکہ پچھلے ہفتے سے ہم نے کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس شروع کیے تھے فعل کے زمرے میں، اور یہ وہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جن کو سمجھنے کے لیے کافی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور ایڈوانس کلاسز میں ان امپورٹنٹ افعال کے بارے میں پھر پوچھا جاتا ہے، کیونکہ یہ کچھ افعال ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل، یعنی ٹیکنیکل آپ کو رہنا پڑتا ہے، اس میں ٹیکنیکل ٹرمز یاد آپ کو رکھنے پڑتے ہیں، اور آپ کو جاننا پڑتا ہے کہ جو ہمارے پاس ثلاثی مجرد، یعنی ایسے افعال جن کا جو مادہ ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے، ان میں سے اگر حروف علت آ جائے، یعنی ایسے حروف جن کو ہم بیماری والے حروف کہتے ہیں، جس میں یعنی واو اور یا شامل کیا جاتا ہے، اگر وہ آ جائے تو کیا تبدیلی آتی ہے فعل کے اوپر. اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ جب بھی آپ افعال کو پڑھیں گے، جب بھی آپ گرامیٹیکل انالیسز کریں گے، اس وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ثلاثی مجرد اصل میں اس کا مادہ کیا تھا، بعد میں تبدیلی کی وجہ سے اس میں کیا ہوا. یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. اس سے آپ قرآن حکیم اور جو عربک گرامر ہے، بوتھ نحو و صرف، اس کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی. اگر آپ نے توجہ رکھا ہوگا، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو فعل ہوتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد، ایسا فعل جس کا مادہ 3 حرفی ہوتا ہے، ثلاثی مجرد ہوتا ہے، اس میں اگر ہمارے پاس حروف علت آ جائے تو کس پوزیشن پر حروف علت آتا ہے، چجائے کہ حروف علت ہمارے پاس فا کلمے پہ آتا ہو، یا عین کلمے پہ آتا ہو، یا لام کلمے پہ آتا ہو. اس بنیاد پر ہمارے پاس فعل کی کچھ امپورٹنٹ اور عجیب و غریب قسمیں ہیں. سب سے پہلے ہم نے پچھلے لیکچر میں یا پچھلے درس میں مثال کی بات کی تھی. مثال کا مطلب ہوتا ہے جب ہمارے پاس حرف علت، چاہے وہ واو ہو یا یا ہو، فا کلمے پہ آ جائے. اسی طرح آج ہم جانیں گے اگر حرف علت یا حروف علت، یعنی حمزہ اور یعنی یا اور واو، الف بھی شامل اس میں ہے، مگر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ الف نہیں آتا، کیونکہ الف تو تبھی الف ہے جب وہ خالی ہوگا. تو ہمارا جو پورا توجہ ہے حروف علت کے بارے میں، تو یا تو وہ واو ہوگا یا پھر یا. اگر وہ عین کلمے پہ آ جائے فعل کے اس وزن پر، تو یاد رکھیے گا اس کو اس وقت اجوف کہتے ہیں. اور اگر حرف علت لام کلمے پہ آئے گا تو اس وقت اس فعل کو فعل ناقص کہتے ہیں. ابھی تک ہم نے فعل مثال کی قسمیں بتائیں، تھوڑا سا میں اس کو ریپیٹ بھی کروں گا، اور پورا جاننے کے لیے پچھلے لیکچر کا ویڈیو آپ دیکھیے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ اجوف کے قاعدوں کی طرف آ جائیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعلی مثال ہمارے پاس صرف مضارع معروف کے پہلے 3 ابواب، یعنی حسیبہ، ضربہ اور فتحہ پہ آتا ہے، یعنی ہا باب، باب ہا، باب ضاد اور باب فا. پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ یہ کتنے باب ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہوتے ہیں، اور اس کا جو ریپریزنٹیٹیو ہمارے پاس فعل ہوگا، اسی کے نام پہ اس کو باب کا نام دیا گیا. فار ایگزامپل حسیبہ ہے باب ہا، ضربہ ہے باب ضاد، اور فتحہ ہے باب فا. یہ 3 ہمارے پاس جو ابواب ہوتے ہیں، ان میں اگر مضارع میں، وہ بھی مضارع معروف کے ان 3 ابواب میں، اگر فا کلمے پہ ہمارے پاس حروف علت آئے، چاہے واو یا، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم
उस हर्फ इल्लत को हज़फ करते हैं। हज़फ या हज़फ कहते हैं, यानी डिलीट करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपके पास है दरबा, वाव, आइन और दाल। वाव, आइन, दाल हमारे पास मादे के 3 हरूफ है। आपने देखा कि वाव हर्फ इल्लत जो है ये फा कलमे के ऊपर है। इसको अगर आप रखेंगे दरबा यानी दाद बाब के ऊपर, बाब दरबा के ऊपर, तो दरबा यदरबु के हिसाब से ये बनना चाहिए वअदा यउइदु। वअदा में तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि मिसाल यानी फेली मिसाल सिर्फ यानी हमारे पास जो मुजारा मारूफ के पहले 3 अबवाब यानी हसीबा, दरबा और फतहा के ऊपर ही लागू होता है। यानी इन्हीं 3 अबवाब में से वाव को हम हज़फ करते हैं। तो दरबा उसके हिसाब से वादा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि ये माजी का सेगा है। मगर यदरिबु में यउइदु का माने निकलना चाहिए या यउइदु बनना चाहिए। मगर हमने कायदा पढ़ा, अगर बाद दरबा से, तो अब दरबा यानी यदरिबु मुज़ारा मारूफ का सेगा होगा, तो उसमें हम हर्फ इल्लत को हज़फ करते हैं यानी डिलीट करते हैं। तो यउइदु बनेगा यईदु, तो वाव साकिन जो है उसको हमने डिलीट कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकरा आयत 268 में अश-शैतानु, शैतान, यहाँ पर खास शैतान का जिक्र है, अलिफ लाम लगाने से ये मारिफा बन जाता है, इब्लीस का जिक्र है। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़रा, फ़क़रा, शैतान ही डराता है, क्योंकि जब इब्तिदा में हम फ़ाइल को लाते हैं तो आपको पता है इसका जो तर्जुमा है उसमें हमारे पास यानी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर डेवलप होता है। तो शैतान ही डराता है यईदुकुम। अब देखिए यईदुकुम, यउइदुकुम के बजाय यईदुकुम, आपको कायदा पता होना चाहिए क्यों, ये फ़ेल मिसाल है। यईदुकुम यानी शैतान ही डराता है तुम्हें। यईदुकुम डराना, डराता है तुम्हें। अल फ़क़रा, किससे? तंग दस्ती से यानी फ़क्र से, गुर्बत से। व यअमुरुकुम, और हुक्म देता है तुम्हें, बिल फ़हशाई, बेहयाइयों का। यानी शैतान जो है तुम्हें डराता है तंग दस्ती से, यानी अगर तुम खर्च करोगे अल्लाह के रास्ते में तो तुम फ़कीर हो जाओगे। और हुक्म देता है शैतान फ़हशा का, फ़हशा मतलब बुराइयों का। वल्लाहु, और अल्लाह जो है याइदुकुम, वादा करता है। यहाँ देखिए याइदुकुम का तर्जुमा दोनों आता है, वादा भी आता है, डराना भी आता है। तो अल्लाह वादा करता है मगफिरतम, किस चीज का? मगफिरत का। मिनहु, जो उसकी तरफ से है, व फजला, और फजल का। यानी शैतान और अल्लाह के मुकाबले में यहाँ ये है कि शैतान जो है अगर तुम ज़कात सदका दोगे तो वो तो बताता है कि तुम फ़कीर हो जाओगे, तंगदस्त हो जाओगे, और बुराइयों का हुक्म देता है। जबकि अल्लाह उसके बरक्स वादा करता है मगफिरत का, और साथ साथ में ये उसकी तरफ से फजल का यानी रिज़्क का। यानी जो भी ख़यालात आते हैं गुर्बत के, ये शैतान की तरफ से होते हैं। अल्लाह की तरफ से हमेशा मगफिरत और फजल का यानी रिज़्क का वादा होता है। इसमें भी आपने देखा यईदुकुम, यउइदुकुम के बजाय यईदुकुम इस्तेमाल हुआ है, तो फेली मिसाल इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु, और बेशक अल्लाह, वासिउन अलीम, खूब जानने वाला, यानी वसत वाला है और खूब जानने वाला है। वासि कहते हैं जो काफी ज्यादा वसत रखता है, जिसको कमी ना हो, जिसको कोई इन्हें किसी को हिसाब और किताब देना ना हो। वासे, वासे कहते हैं जो बेदरेग, यानी कोई लिमिट नहीं हो। और अलीम बहुत खूब जानने वाला है। एक और मिसाल हम फेली मिसाल की देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वाव दाद आइन, इसमें वाव आप देखिए ये फा कलमे के ऊपर है, तो ये भी फतह यफ्तहु के बाब से लेके यानी उन्हीं 3 अबवाब में से फतह यफ्तहु, तो बनना चाहिए वदा याउ आदु। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो वदा में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमने बताया ये माजी का सेगा है। मुजारा में फर्क आता है, याउ दाऊ के बजाय यादाऊ, वदा यादाऊ, असल में याउ दाऊ था मगर वाव का हमने हज़फ किया। तर्जुमा उसने गिरा दिया, वो गिरा देता है या गिरा देगा। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह, बिलाशुबा, यकीनन अल्लाह, यरफउ, बुलंद करता है, बिहादल किताबी,
इस किताब के जरिए यानी कुरान मजीद के जरिए अक़वामन बहुत सारे कौमों को यानी कुछ कौमों को, अक़वामन यहाँ पर नकिरा का सेगा है, तो अक़वामन यानी कुछ कौमों को अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए कुछ कौमों को, कुछ यानी जो कौम होते हैं, कुछ इलाके के रहने वाले लोग होते हैं, उनको बुलंद कर देता है, उनकी बुलंदी बयान कर देता है। व यदअु और गिरा देता है बिही इसी के जरिए आखरीन दूसरे लोगों को यानी दूसरे कौमों को। यानी कुरान के जरिए कुछ लोगों को हिदायत मिलती है, वो बुलंदी पे आ जाते हैं, और कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। जब आप अमल नहीं करेंगे कुरान के ऊपर तो नेचुरली गुमराही जो है उसी कुरान की वजह से हो जाती है, आप अमल नहीं करते। और अगर आप इस पे अमल करते हैं तो अल्लाह तबारक ताला कौमों की इज्जत देने वाला है, क्योंकि इज्जत और जिल्लत जो है ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। सही मुस्लिम की ये सही हदीस है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, आपने देखा यरफाउ, यरफाउ तो क्लियर है, मगर यदाउ कैसे आया? असल में याउदाउ था, वाव को हमने हज़फ किया क्योंकि ये फेली मिसाल है। तो आपको जब याउदाउ पढ़ेंगे और यदाउ पढ़ेंगे, यदाउ में आपको पता होना चाहिए कि असल में याउदाउ है और वाव जो है उसको हज़फ किया गया, क्योंकि याउदाउ या यदाउ ये फेली मिसाल है। चलिए, फेल मिसाल के बाद आज का जो एक्चुअल टॉपिक है वो है फेल अजवफ। और फेल अजवफ कहते हैं ऐसा फेल जिसके आइन कलमे पे हर्फ इल्लत मौजूद हो, उसको अजवफ कहते हैं। अजवफ, अजवफ यानी फेल अजवफ का हर्फ इल्लत अपनी बीमारी की वजह से हरकत करने के काबिल नहीं होता, लिहाजा उसका इलाज करने के लिए उसकी हरकत को हम ख़त्म कर देते हैं, उसको ज़रूरी ख़त्म करना होता है, जिसके मंदरज झेल तरीके हैं। तो याद रखिएगा हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास अगर आइन कलमे पे यानी फा आइन लाम आइन कलमे के अगर हमारे पास हर्फ इल्लत हो, चाहे वाव हो चाहे या हो, याद रखना पड़ेगा कि उस वक्त वो बीमार हो जाता है और बीमारी की वजह से ये जो हर्फ इल्लत है वो हरकत नहीं करता, इसलिए उसका इलाज करना ज़रूरी होता है। अब इलाज कैसे किया जाता है उसके लिए यहाँ पर मैंने कायदे मुकर्रर किए हैं, उसको आप देखिएगा, समझिएगा, फिर हम मिसालों के ज़रिए इसको मज़ीद समझेंगे। याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक्स हमने शुरू किए हैं इनमें टेक्निकलिटी है, इन्हें आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी तवज्जो रखनी पड़ेगी और नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि ये चीज़ें आपको ज़हनशीन हो जाए। तो कायदा नंबर 2 ये बन जाता है कि अगर हर्फ इल्लत से पहले हर्फ यानी माकबल हर्फ, हर्फ इल्लत जो होगा आइन कलमे पे होगा, उससे पहले वाला हर्फ जो नेचुरली फा कलमा है, अगर उससे पहले यानी माकबल हर्फ इल्लत से पहले वाले हर्फ पर अगर वो साकिन होगा, जज़म होगा, तो हर्फ इल्लत की जो हरकत है वो मुंतकिल हो जाएगी, वो ट्रांसफर हो जाएगी उसके पहले वाले हर्फ पर यानी फा कलमे पे। और अगर हर्फ इल्लत पहले यानी हर्फ इल्लत से पहला हर्फ यानी माकबल हर्फ अगर वो मुतहरिक है, मुतहरिक मतलब ज़बर ज़ेर पेश है, तो हर्फ इल्लत की जो हरकत है उसको ख़त्म कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास हर्फ इल्लत जो है वो फा कलमे पे नहीं बल्कि आइन कलमे पे होगा तो उस वक्त उसको अजवफ कहते हैं। अजवफ में हम करते क्या है कि हर्फ इल्लत से पहले वाला जो हमारे पास हर्फ होगा अगर वो यानी साकिन होगा यानी जज़म उस पे होगी, तो हर्फ इल्लत पे जो हरकत होगी वो मुंतकिल करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे फा कलमे के ऊपर यानी हर्फ इल्लत से पहले। और अगर हर्फ इल्लत से पहले वाला पहले ही ज़बर होगा या ज़ेर होगा या पेश होगा, तो हर्फ इल्लत की हरकत को हम ख़त्म कर देते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दूँ, मिसाल यहाँ पर है क़ाफ़ वाव लाम, क़वाला। अगर इसको नसरा के बाब पे रखेंगे, नसरा यंसुरु, ये बनेगा कवाला यकवुलु, कवाला यकवुलु। मगर आपने देखा कि कवाला यकवुलु में आपने रूल ऊपर पढ़ा है कि अगर हर्फ इल्लत पे ज़बर हो यानी हर्फ इल्लत से पहले ज़बर हो, जैसा कि आपने यहाँ देखा हर्फ इल्लत से पहले अगर हर्फ यानी माकबल हर्फ अगर उस पे हरकत हो तो हर्फ इल्लत को हम साकिर कर देते हैं, उसकी हरकत को ख़त्म कर देते हैं। तो कवाला बन जाएगा काउला, कवाला क्या बन जाएगा? काउला, इस रूल के हिसाब से। और अगर हर्फ इल्लत से पहले वाले हर्फ पे जज़म हो, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ये वाला कायदा, पहला वाला कायदा, तो हर्फ इल्लत की जो हरकत है उसको हम पिछले हर्फ पे माकबल हर्फ पे ट्रांसफर करेंगे, तो यक़ुलु बन जाएगा यक़ूलु।
क्योंकि हरफ इल्लत का जो पेश था उसको हमने माकबल यानी पिछले हर्फ पे ट्रांसफर किया। तो यही है इसका मतलब कि अगर हरफ इल्लत से पहले वाला हर्फ यानी माकबल हर्फ साकिन हो तो हरफ इल्लत की जो हरकत है उसे मुंतकिल करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपने देख लिया। और अगर हरफ इल्लत से पहले वाला हर्फ जिसको माकबल हर्फ कहते हैं वो ऑलरेडी मुतहरिक है, मुतहरिक का मतलब जबर जेर पेश है, तो उस सूरत में हरफ इल्लत को हम यानी उसकी हरकत को खत्म कर देते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर कानून देख लिया। ठीक है, ये तो था दूसरा कायदा। तीसरा कायदा ये बताते हैं कि अब आपने जो ये अमल कर दी उसके बाद हरफ इल्लत की हरकत का फैसला कैसे करेंगे, अब इसको क्या करना है हरफ इल्लत को, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हरफ इल्लत दोनों पे सुकून आ गया, अब इसका क्या करेंगे। तो इसके बाद दूसरा कायदा लागू होगा, वो लागू ये है कि अगर माकबल हर्फ यानी इससे पहले वाले हर्फ पर जबर होगा, जैसा कि यहाँ पर जबर है, तो उस वक्त हरफ इल्लत को हम अलिफ में तब्दील कर देते हैं, तो कौला बन जाएगा काला। अब देखिए कितना आपको टेक्निकल चीजें ये समझने की जरूरत है। तो असल में काला जो है वो कौला था, मगर कौला भी नहीं था, वो कवाला था। यानी काला का जो मादा है वो है कवाला, कवाला, और बाबी नसरा यानी बाबी नून से है वो, मगर उसको पहले इस रूल के हिसाब से हमने कवाला से कौला बनाया, और चूंकि यानी आपको पता है कि हरफ इल्लत से पहले जबर है, तो उस वक्त हरफ इल्लत को हम अलिफ बना देते हैं, तो कौला बन जाता है। कौला का तर्जुमा है उसने कहा, ये माजी की बात है। इसी तरह अगर हरफ इल्लत से माकबल यानी पहले जेर हो, यानी ये तो जेर यहाँ मिसाल नहीं है मगर आपको समझना पड़ेगा, तो हरफ इल्लत को हम या में तब्दील कर देते हैं, उस वक्त हरफ इल्लत को हम या में तब्दील कर देते हैं जेर के साथ। और अगर हरफ इल्लत से पहले पेश हो, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा यकूलु बन जाता है यकूलु, तो उस वक्त क्या करते हैं, हरफ इल्लत को हम वाव साकिन में तब्दील करते हैं, तो यकूलु बन जाएगा यकूलु, यानी इस वाव पे हमने अब सुकून लाया, परमानेंट सुकून लाया, और उसका तर्जुमा होता है वो कहता है या वो कहेगा। तो कवाला जो है बाब नसरा यानी बाब नून से कवाला यकबुलु बनना चाहिए, मगर इन रूल्स के बाद ये बन जाता है काला यकूलु, तो कवाला बाब नसरा पे बन जाता है काला यकूल। क्यों? क्योंकि ये जो कवाला है ये जो है ये फेल अजवफ है, और फेल अजवफ में मैंने आपको ये कानून बता दिया। तो कानून नंबर 2, कायदा नंबर 2 अभी आपको लागू करना पड़ेगा। पहले हरफ इल्लत को हमें मतलब इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हरफ इल्लत की ट्रीटमेंट के बाद अब उस हरफ इल्लत को हमें क्या करना पड़ेगा, या तो वो अलिफ में तब्दील होगा, या वाव साकिन में तब्दील होगा, या साकिन, डिपेंड करता है कि इससे पहले वाले हरफ पे कौन सी हरकत होगी, जैसा कि मैंने आपके सामने बयान किया। अब कुछ मिसालें हम देंगे जिससे हमारी जो बातें हैं क्लियर हो जाएंगी। यही जो मैंने आपको बताया, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास है कैफ वाव नून, इसमें भी आप देखें कि वाव जो है हरफ इल्लत जो है ये आइन कलमे पे है, तो ये भी नेचुरली हमारे पास फेल अजवफ है। अब ये इसको नसरा यंसुरु के बाब पे डालिए, तो ये बनेगा कवाना यकवुनु, कवाना यकवुनु। अब सबसे पहले कानून क्या होगा, हरफ इल्लत से पहले वाले हरफ पे जबर है, तो आपने देखा कि हरफ इल्लत के हरकत को हमने गायब कर दिया। अब हरफ इल्लत का जो हर्फ है वो गायब हो गया, ठीक है, सुकून कुछ भी नहीं था। अब हम देखेंगे कि हरफ इल्लत के पहले वाले हरफ पे जबर है, तो ये वाव जो है ये अलिफ पे तब्दील हो जाएगा, तो कौना बन जाएगा काना। काना जो है असल में इसका जो मादा है वो है कवाना। चूंकि ये इस वक्त फेल अजवफ है, इसलिए कवाना पहले बन जाएगा कौना, फिर बनेगा काना। तर्जुमा है वो था या वो हो गया। नसरा यंसुरु के हिसाब से यकवुनु बनेगा, यकवुनु सबसे पहले याकू नु बनेगा। वाव को चूंकि वाव से पहले पेश है, तो वाव से पहले पेश चूंकि होने की वजह से वाव पे जज्म आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर पेश होगा माकबल तो यानी वाव आएगा साकिन के साथ, अगर जबर आएगा तो आपने पता है कि क्या होना चाहिए, यानी अगर जेर आएगा, जेर की सूरत में वो या साकिन बन जाएगा, और पेश की सूरत में वो वाव साकिन बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, उसका तर्जुमा है वो होता है या वो होगा। इसी तरह एक हमारे पास है कॉफ वाव मीम, कवामा,
नसरा पे डालिए, बाबी नसरा यंसुरु। कवामा यक़वुमु, इसमें भी वही तब्दीली आएगी। कवामा पहले बनेगा का, वाव की हरकत को हम गायब करेंगे, मीम रखेंगे, उसके बाद चूंकि वाव से पहले जबर है तो बनेगा कामा। कामा वो खड़ा हो गया। और यक़वुमु बनेगा सबसे पहले यक़ु, वाव पे कुछ नहीं रखेंगे, मीम रखेंगे पेश के साथ। उसके बाद आपने देखा कि वाव से पहले पेश है तो उस पे जज्म आएगा तो बनेगा यक़ूमु, वो खड़ा होता है या वह खड़ा होगा। इसी तरह आइन वाव जाल आपने देखा, नसरा यंसुरु के वजन पे इसको डालिए तो बनेगा अवदा या याउदु। इसको भी वही तब्दीली लाइए तो अवदा बनेगा, पहले उसको वाव को इसकी हरकत को हटा देंगे। उसके बाद चूंकि वाव से पहले जबर है तो बनेगा आदा और याऊदु। आऊदु पढ़ते हैं ना, आऊदु मैं पनाह मांगता हूँ, आदा उसने पनाह मांगी, याऊदु वो पनाह मांगता है या मांगेगा, इसी से निकला है आऊदु। जब हम पढ़ते हैं ना आऊदु बिल्लाहि, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह से, मिनश शैतानिर रजीम, शैतानी मरदूद से। यानी इसका ये मतलब होगा कि आदा असल में आदा जो था, या आदा याऊदु असल में ये था अवदा याऊदु। मगर चूंकि ये बाब अजवफ है, इसमें कानून यानी फेल अजवफ है, कवानीन इस पे लागू होंगे, तो ये बनेगा आदा याऊदु। और याऊदु का जो गर्दान पढ़ेंगे 13वां बाब जो है वो है आऊदु, यानी फेल मुतकल्लिम, उसमें इसका तर्जुमा होगा मैं पनाह मांगता हूँ। और नाऊदु हम सब पनाह मांगते हैं, नाऊदु बिल्ला पढ़ते हैं ना, उसका तर्जुमा होता है कि हम सब अल्लाह से पनाह मांगते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि इसका जो असल में जो इसका यानी मादा है वो आइन वाव दाल है। इसी तरह जा वाव रा, बाबी नसरा पे डालिए वाव, चूंकि यहाँ पर आइन कलमे पे है तो ये भी फेले अजवफ है। नसरा यंसुरु, जवरा यजवुरु, इसमें तब्दीली कीजिए तो जवरा बनेगा जा, वाव को हम हरकत हटा देंगे रा। इसके बाद चूंकि वाव से पहले जबर है तो बनेगा जारा, क्योंकि आपको मैंने बताया अगर हरफ इल्लत से पहले जबर होगा तो अलिफ में तब्दील होगा, पेश होगा तो वाव में तब्दील होगा, और जेर होगी तो या में तब्दील हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा यजूरु बनेगा यजूरु, जारा यजूरु, उसने जियारत की, वो जियारत करता है या जियारत करेगा। मीम वाव ता, बाबी नसरा यंसुरु पे डालिए तो बनेगा मवता यमवुतु, मवता बनेगा, वाव की जबर को हटा देंगे। उसके बाद आपने देखा वाव से पहले जबर है तो जबर की वजह से अली बनेगा तो मवता बनेगा माता, और यमवुतु बनेगा यमूतु, माता यमूतु, इसका मीम वावता है, वो फोत हो गया या वो मर गया, वो फोत होगा या होगा, यानी वो मरेगा या मरता है या मरेगा। इसी तरह वाव वाव फा, अब देखिए इससे आपको समझ में आएगी कि हमने क्या तब्दीलियां की, इसीलिए मैंने बहुत सारी मिसाल यहाँ रखी है। तो कारुमा के वजन पे डालिए, कारुमा या करुमु, ये बनेगा तौफा या तुवुफु। तौफा को तब्दील कीजिए, वो बनेगा वाव को साकिन कीजिए, और साकिन साकिन नहीं, पहले तो उसको हरकत को हटा दीजिए, हरकत से पहले जबर है तो बनेगा तौफा, और यतुवुफु बनेगा यतुवुफु, उसने चक्कर लगाया, वो चक्कर लगाता है या लगाएगा। अब कुछ यानी हदीस और एक आयत की मिसाल देंगे ताकि ये जो हमारे पास अजवफ है, फेल अजवफ है, वो क्लियर क्लियर हो जाए। अब देखिए हदीस मुबारक में आया है मम माता, असल में माता जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका यानी पहला ये इसका जो यानी मादा है वो क्या है। तो इसका मादा मीम अलिफ ता नहीं है, याद रखिएगा, इसका मादा जो है मीम वाव ता है। तो वाव वाव तो है ही नहीं, तो उसको आपको याद रखना है कि वाव के साथ क्या हुआ, इस पे यानी कायदे लागू हो गए फेल अजवह के। तो मम माता, जो कोई फोत हो गया, मर गया, फकद पस बिलाशुबा या तहकीक, कद इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को जोर देने के लिए, यानी जो फोत हो गया और बिलाशुबा तहकीक, कामत क़ियामतु, उसकी कयामत कायम हो चुकी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई कयामत में तो आने में बहुत सारा टाइम है और वो है और ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मर गया, यकीनन तहकीक, बस यकीनन तहकीक उस शख्स पर कयामत कायम हो चुकी है। तो जो मरता है उस पर कयामत ऑटोमेटिकली कायम हो जाती है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमाता है व इज़ क़ाल, असल में कवाला था, कवाला का जो यानी इसका जो मादा है, मादे के 3 हरूफ है वो है कवाला, और कवाला से ही वो बन जाएगा काला। क्यों बनेगा आपको मैंने बताया, कवाला से पहले उस पे वाव पे हरकत को हटा देंगे,
اور واو کی حرکت سے پہلے زبر ہے تو زبر کی وجہ سے واو جو ہے الف میں تبدیل ہو جائے گا، تو یہ بنے گا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، رَبُّكَ، آپ کے رب نے یا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، لی حرف جارہ اور مجرور، الملائکتو تھا مگر الملائکتی بن جائے گا کیونکہ لام جارہ کی وجہ سے، اور جب قال کہا، ربک، آپ کے رب نے، للملائکتی، ملائکہ سے، انی، یقیناً میں، ٹھیک ہے، انی، ان اور پھر یا ہے تو اننی کے بجائے اس کو اننی بھی پڑھا سکتے ہیں مگر قرآن میں انی لکھا ہے تو ہم انی پڑھیں گے، یقیناً میں، جاعلن، بنانے والا ہوں، جاعلن، بنانے والا، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، ایک نائب، یعنی یہ مکالمہ ہے جب حضرت رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بات کی، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں، اور زمین کے اندر اپنا ایک نائب، خلیفہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا قالا، قرآن مجید میں بہت جگہ قالا استعمال ہوا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، اصل میں قوالا تھا، قوالا کے بعد اس میں فعل اجوف کے قاعدے لاگو ہو گئے تو یہ قالا بن گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں گی، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ آپ سمجھیے گا کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اب قالا کا جو ہے قولا، یعنی اگر اس کو ہم اجوف کا باب نصرہ کا ایک قالا مان لیجئے لیں گے تو اصل میں قولا، قولا، قولو تھا، مگر اس کو جب ہم قاعدہ لگا کے ہم گردان بنے گے تو یہ بنے گا قالا، قالا، قالو، یعنی قولا، قولا، قولو کے بجائے بنے گا قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا، یاد رکھیے گا یہاں پر قلنا، ٹھیک ہے، قلنا، ٹھیک ہے، اصل میں قلنا بنے گا، یہ کیوں بنے گا قلنا؟ کیونکہ قال نہ بنے گا، پھر وہ کل نہ بنے گا اور اس کے بعد وہ قل نہ بنے گا، ٹھیک ہے، تو قال، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلت، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلت، قلنا، یہاں پر صرف قلنا پہ جو ہے امپورٹنٹ قاعدے لاگو ہوں گے، یہاں پر وہ لکھا ہے کہ، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے آج امپورٹنٹ چیز اجوف کے بارے میں پڑھا، اجوف بھی ختم نہیں ہوا، بہت ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے، تو قاعدہ 3 ہم نے پڑھا، پہلا، دوسرا، تیسرا، اب چوتھا قاعدہ جو ہے یاد رکھیے گا، گردان کرتے ہوئے اگر 2 ساکن اکٹھے آ جائیں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو ان میں سے جو حرف علت جو ہے اس کو ہم حذف کر دیتے ہیں کیونکہ 2 ساکن ہم پڑھیں گے نہیں، اب 2 ساکنوں میں اگر حرف علت والا بھی ساکن ہو اور اس سے پہلا والا بھی حرف ساکن ہو یا بعد میں، تو ہمیں حرف علت والے کو ہی ختم کرنا ہے، باقی جو حرف رہے گا ساکن کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد جو فا کلمہ ہوگا اسی کی حرکت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اگر فا کلمے کی حرکت اس کی ذاتی ہو تو یہ چیزیں لاگو ہوں گے، مثال کے طور پر باب نصرہ اور کرما میں، یعنی نون اور کاف میں فا کلمے کو ضمہ یعنی پیش دیں گے، باقی تمام ابواب یعنی 4 ابواب میں فا کلمے کو کسرہ یعنی زیر دیں گے، اور دوران گردان حرف علت کے حذف ہونے پر فا کلمے کی حرکت کی تبدیلی کا قاعدہ صرف فعل اجوف پر لاگو ہوگا۔ اب ایک ہم گردان پڑھیں گے، اس سے یہ جو اوپر والا قاعدہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں، قالا تو ہم نے پڑھ لیا، قالا کے بعد اگر ہم اس کا، وہ تو ماضی کا گردان کا، اگر مضارع کا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دو جو ساکنین ہے وہ جمع ہو جائیں گے، جیسے یقول، یقولان، یقولون، تقول، تقولان، یقلن، اصل میں یہ یقلن کیوں بنا؟ اصل میں یہ بن جاتا ہے یقو، پھر لام پہ بھی ساکن اور نون پہ زبر، نیچے میں نے سٹار کے ذریعے اس کو سمجھایا ہے، تو اوپر والا قاعدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 2 ساکن جمع ہوئے گردان کرنے کی وجہ سے تو جو حرف علت والا سکون ہے یعنی حرف علت کو ہم ہٹا دیں گے، کلیئر؟ جیسا کہ آپ نے یہاں پر حرف علت کو ہٹا دیا تو قاف جو ہے ڈائریکٹلی لام کے ساتھ ملے گا تو بنے گا یقلنا، تو یقلنا کیسے بنا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ اصل میں 2 ساکنین جمع ہو گئے تھے، 2 ساکن یعنی 2 ساکن یا ساکنین جمع ہوئے تھے تو ہم نے واو ساکن یعنی حرف علت والے کو ختم کر دیا۔ اسی طرح تقول، تقولان، تقولون، تقولین، تقولان، تقلنا، یقلنا کی طرح تقلنا یہاں پہ بھی ایسی ہو جاتا ہے اقول، نقول، تو تقلنا جو ہے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا، تقلنا اصل میں تقو لام پہ بھی ساکن ہے، نون پہ بھی، ہم کیا کرتے ہیں کہ
हर्फ इल्लत वाले यानी हर्फ को हम ख़त्म कर देते हैं, जैसा कि हमने रूल ऊपर बता दिया। तो ये अजवफ का ही कायदा है। सिर्फ आपको याद रखना है कि गर्दान के दौरान अगर हमारे पास अजवफ में दो साकिन जमा हो जाए, तो उसमें जो हमारे पास हर्फ इल्लत का सुकून होगा उसको हम हटा देते हैं, हर्फ इल्लत को ही हटा देते हैं, तो वो रहता ही नहीं। कुछ मिसालें देंगे कुरान हकीम से। सूरतुल अनाम आयत नंबर 50 अल्लाह फरमाता है ला अकूलु, अकूलु ये क्या है? ये यहाँ पर हमारे पास अकूलु यानी 13वां सेगा है। गर्दान फेल मुजारा अजवफ बाब नसरा का 13वां सेगा यानी मुतकल्लिम सेगा, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा अकूलु। कुरान अल्लाह ताला फरमाते हैं ला अकूलु, ला अकूलु नहीं कहता मैं, लकुम तुमसे, इंदी मेरे पास हैं, खजाइनुल्लाह अल्लाह के खजाने। यानी मैं तुमसे ये दावा नहीं करता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, वाला और नहीं, अअलमुल गैबा न मैं जानता हूँ गैब को, यानी मेरे पास गैब का भी इल्म नहीं है। वाला और नहीं, अकूल मैं कहता हूँ तुमसे, लकुम तुमसे, इन्नी मलक या इन्नी मलकुन की हकीकत में एक फरिश्ता हूँ। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकालमा कर रहे थे मुशरिकीन से, अरब के मुशरिकों से, तो उस वक्त मुशरिकीन आपसे बड़े वो जंगो जदल की सूरत में बातें कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप उनको कहिए कि मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि मेरे पास खजाने हैं अल्लाह के, न मेरे पास गैब का इल्म है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, और न मैं ये कहता हूं कि मैं एक फरिश्ता हूं। यानी मैं इंसान हूं, तुम जैसा इंसान, मगर अल्लाह तबारक तआला ने मेरे ऊपर वही नाजिल की है जिसकी वजह से मैं खास बन गया। ठीक है? तो इंसानी जो बशरी तकाजे हैं, खाने पीने की सूरत, बाजार में चलने की सूरत, बीमार पड़ने की सूरत, वो मैं तुम जैसा हूं। बाकी अल्लाह ने मुझ पे फजल किया है कि मुझ पे वही नाजिल की है और मुझे खास पैगंबर बना दिया है। इसी तरह जब हम पढ़ते हैं कद कामतिस सलातु, यकीनन तहकीक खड़ी हो गई है नमाज, जब पढ़ते हैं ना हम, यानी जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, उससे पहले तकबीर ऊला कहते हैं, उसमें भी हम पढ़ते हैं कद कामतिस सलात, तो कामत भी असल में उसी रूल के हिसाब से है। सूरतुल कहफ आयत नंबर 14 अल्लाह फरमाता है वराबतना अला कुलूबिहिम, और हमने मजबूत कर लिया। रबतना कहते हैं, रबता यानी मजबूत करना, हमने, क्योंकि ये फेल मुतकल्लिम जो है यानी जमा मुतकल्लिम का सेगा है रबतना, और हमने मजबूत कर दिया अला कुलूबिहिम उनके दिलों को, इज़ कामू जब वो उठे, फ़क़ालू और कहा, रब्बुना कहने लगे, क्या कहने लगे? फ़क़ालू वो कहने लगे, रब्बुना हमारा रब, रब्बुस समावाति वल अर्द आसमानों और जमीन का रब है। वरबतना अला कुलूब यानी हमने मजबूत कर दिया उनके दिलों को। सूरतुल कहफ में ये असहाब कहफ का जिक्र है कि जब उनसे उस बादशाह ने कहा कि तुम शिर्क करो, तो उसने उन्होंने उनका नहीं माना और वो खड़े हो गए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो गए और कहा कि हम गवाही देते हैं कि हमारे दिल जो है, हम कबूल करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ही आसमानों और ज़मीन का रब है। सूरतुल कारिया आयत नंबर 4 और 5 में अल्लाह फरमाता है यौमा यकून, यकून के बजाय यकून, काना यकून कायदा आपने पढ़ा, जिस रोज होंगे, अन्नासु लोग बिखरे हुए, कल फराशिल मबसूस पतंगों की मानंद। यानी जिस तरह जिस रोज कयामत का जिक्र यहाँ पर है कि लोग होंगे, होंगे यकून होंगे, अन्नासु लोग, कल फराशिल का कहते हैं बिलमानन, फराशिल मबसूस पतंगों की मानंद, जैसे वो पतंगे उड़ते हैं ना उसकी तरफ होंगे। व तकून, तकून के बजाय तकून, तकून असल में तकवुन था मगर तकून बन जाएगा, काना यकून, यकून के ऊपर भी तकून बन जाएगा। और हो जाएंगे अल जिबालू पहाड़, कल इहनिल मनफूश दुनी हुई रंगीन ऊन की तरह, यानी जिस तरह वो ऊन वाला उसको धुनता है और वो ऊन आसमान पे उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है, इसी तरह पहाड़ों का मामला होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इसके बाद सूरतुल यानी सही बुखारी में एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की जिसमें दुआ के बारे में हमें हुक्म दिया गया कि हमें इस दुआ को पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा ए हमारे रब,
दुआ इसमें की जाती है, इन्नी बिलाशुबा मैं अऊज़ु बिका पनाह मांगता हूँ आपसे। अऊज़ु आज़ा आज़ा, यानी जब हमने पढ़ा आज़ा यऊज़ु, यऊज़ु का जो पहले वाहिद मुतकल्लिम है वो बन जाता है अऊज़ु, जैसे अऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा ए हमारे रब, इन्नी बिलाशुबा अऊज़ु बिका मैं पनाह मांगता हूँ आपसे, मिन अज़ाबिल क़ब्र कब्र के अज़ाब से, व अऊज़ु बिका और मैं पनाह मांगता हूँ बिका आपसे, मिन अज़ाबि जहन्नम जहन्नम के अज़ाब से, व अऊज़ु बिका और मैं पनाह मांगता हूँ तेरी, बिका मतलब तेरी यानी आपसे, मिन फितनतिल मसीह दज्जाल इंतहाई मकार मसीह के फितने से, यानी दज्जाल का जो फितना होगा उसकी वजह से, वाऊज़ु बिका और पनाह मांगता हूँ तेरी, मिन फितनतिल महया वल ममात जिंदगी और मौत की आजमाइश से। ये सही बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको पढ़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पढ़ते हैं, इसको आप याद भी रखिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। आमीन या रब्बल आलमीन। इस तरह हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। अजवह में थोड़े से और कायदे रह जाते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इस लेक्चर को मैं अभी फौरन अपने चैनल पे भी अपलोड करूंगा। अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो उससे आप कंफर्म कीजिए। सवाल आप उसमें लिख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप सवालात लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।